Photoelectric emission. Photoelectric emission takes place if frequency of photon beam is greater than threshold frequency for the metal surface. And the energy of photon is given by E is equal to h nu. Energy of photon is given by E is equal to h nu. Einstein assumed that one photoelectron is ejected. Einstein assumed that one photoelectron is ejected from the metal surface if one suitable photon falls on it. And the energy of photon Say once again. one photoelectron is ejected from metal surface if one suitable photon falls on metal. The energy of photon is spent in two ways. Energy of photon is spent in two ways. एनर्जी ऑफ फोटोन बात क्या बोला था? Is spent in two ways. First is a part of the energy is used. Part of the energy is used in liberating the electron from the metal surface. In liberating the electron from the metal surface. से एक बार रिपीट मैंने अभी In ज्वाइन किया है। liberating the electron from the metal surface, which is equal to work function of the metal. Which is equal to work function of the metal. Second is the rest of the energy of photon is used in imparting maximum kinetic energy to the emitted electron. Maximum kinetic energy to the emitted electron. That is एक बार थोड़ी सी रिपीट कर दो. यूज्ड इन इम्पार्टिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी to the emitted electron. आपकी वॉइस भी ब्रेक कर रही है, बोर्ड भी ब्लर है। आपका नेट बहुत स्लो है आज, आवाज भी बहुत क्रैक कर रहा है। ये वॉइस लैग आ रहा है.
इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज h nu minus phi naught. This relation implies that larger the frequency, this equation implies that larger the frequency of incident radiation, larger will be the maximum kinetic energy. Larger will be the maximum kinetic energy. Next paragraph में लिखो. If Vs represents stopping potential for photoelectrons, if Vs represents stopping potential for photoelectrons, then we can conclude that when fastest moving electron is stopped, its kinetic energy gets converted. Its kinetic energy gets converted at that instant into electrostatic potential energy. There is lambda is incident wavelength. So frequency greater than threshold frequency or wavelength less than threshold wavelength. Frequency greater than threshold frequency or wavelength less than threshold wavelength. So basically एक ही equation है उसको reframe किया सिर्फ in terms of wavelength. Next is failure of wave theory to explain photoelectric effect. Failure of wave theory to explain photoelectric effect. सर हाँ जी. सर आप बीच में क्रैक हो जाएगी. मैं ना इसीलिए कह रहा हूँ. अब देखो अब कोरोना है नहीं, अब घूमते भी हो तो क्लासेस ऑफलाइन लगाओ.
बिकॉज नेट की प्रॉब्लम तो रहेगी इसमें, मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब मेरे पास जो कनेक्शन है जलंधर में अवेलेबल, जियो का भी एयरटेल का भी, वो नहीं चल रहा उससे, तो उसमें मैं क्या करूँ? तो जिसको नेट का इशू है मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस लगा लो, नहीं तो मैं जबरदस्ती ऑफलाइन कर दूंगा सब चीज। बिकॉज मेरे को भी ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्शन रहती है बीच में कि नेट नहीं चल रहा, वॉइस नहीं आ रही। अब आप सारी जगह जा रहे हो तो क्लासेस लगाने भी आ जाओ, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं फिर। और मेरे को आइडिया भी लगेगा आप क्या पढ़ते हो। बिकॉज जैसे हम बीच बीच में क्लास हमारी रुकती रहती है और ये रोज की प्रॉब्लम होती जा रही है, तो बेटर है ऑफलाइन लगा ले। मैं जो एक दो तीन नहीं आएंगे उनके लिए क्लास में कैमरा लगा दूंगा, वो बोर्ड देख लेना। जो आ सकते हैं वो सारे ऑफलाइन क्लासेस लगा लो। बिकॉज मैंने कल पूछा था, मेरे को सिर्फ 3 लोगों ने भी बोला है कि हमने ऑफलाइन आना है। तो घर बैठ के पढ़ने की आदत पड़ गई है आपको बेसिकली, मेरे को ये लग रहा है कि घर से निकलना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे क्लास लग रही है। So you can write the first point लिखो, according to wave theory. According to wave theory, photoelectric emission is possible. According to wave theory, photoelectric emission is possible from a metal surface. Where waves of all frequencies, where waves of all frequencies provided, intensity of light is sufficient to provide एक बार प्रोवाइड के बाद रिपीट कर दो। is possible from metal surface. The light wave of all frequencies provided intensity of light is sufficient to provide the required energy to the electrons. This implies that increasing the intensity of incident wave, increasing the intensity of incident wave the energy can be increased and photoelectric emission will take place even if frequency is less than threshold frequency. Even if frequency is less than threshold frequency. But experimentally it was found that no photoelectric emission take place if frequency is less than threshold frequency. Second is when
Wave falls on a metal surface. The energy of wave will not go to one electron, but will be distributed to all the electrons present in the illuminated region of metal surface. All the electrons present in illuminated region of metal surface the electrons starts accumulating. The electrons starts accumulating this energy and when it becomes greater than threshold energy, electrons will be emitted from the metal surface. Therefore, there is some delay in photon there is some delay in light striking the metal surface and emission of electrons, but experimentally it was found that photoelectric effect is instantaneous phenomenon, Striking the metal surface. but it was found that there is some delay sorry क्या लिखा था गलत लग गया हमने क्या लिखा अभी सेंटेंस So there is some delay in light striking the metal surface. and emission of electrons, but experimentally it is an instantaneous phenomenon. But experimentally it is an instantaneous phenomenon. Next is dual nature. Concept क्या था डी ब्रॉगली का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं इसको Why we call it de Broglie hypothesis? Why not law? Proof नहीं है. De Broglie ने स्टेटमेंट क्या दी थी जो हम इसको हाइपोथेसिस कहते हैं लॉजिक क्या था और स्टेटमेंट क्या दी थी de Broglie ने कहा था there is some phenomena like photoelectric effect and Compton scattering which can be explained only if you assume light as a particle, whereas there are some phenomena like diffraction and polarization which can be explained only if you assume light to be a wave. तो उसने कहा इसका मतलब लाइट का डुअल कैरेक्टर है सो लाइट पोजेसेस डुअल कैरेक्टर एंड उसके बाद डी ब्रॉगली की वो फेमस स्टेटमेंट क्या थी जिससे उसको हाइपोथेसिस कहते हैं बिकॉज डी ब्रॉगली ने कुछ बोला होगा ना कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है तो क्या फिर उससे क्या ऐसे loves symmetry. उसने कहा नेचर loves symmetry, everything in the universe is symmetrical. तो अगर लाइट का डुअल कैरेक्टर है तो बाकी चीजों का भी डुअल कैरेक्टर होना चाहिए. अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज
H/mv. h/mv. लैम्डा इज h/mv एंड प्रूफ कैसे करेंगे इसको? अगर हम फोटॉन लेते हैं तो फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H h न्यू एंड इसको किसके साथ इक्वेट करें? If you want to find the de Broglie wavelength of any material, तो कैसे निकलेगी? कैसे करें बोलो? एनर्जी का एक फॉर्मूला तो आपने भूल दिया कि एनर्जी ऑफ आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन से इक्वेट कर दो। आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन क्या थी? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h nu माइनस phi नॉट। अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें कहाँ से लग जाएगा? E is equal to T is equal to mc square. E is equal to mc स्क्वायर। तो क्या आ गया ये? h nu is equals to mc स्क्वायर। h nu is lambda comes out to be h upon mc। तो mc क्या है यहाँ पे? mc Mass of particle into speed of light. मास कौन से पार्टिकल का? मास कौन से पार्टिकल का? electron. अच्छा, एनर्जी यहाँ फोटोन की है, मास इलेक्ट्रॉन का। यार आइटम हो गया पूरे के पूरे सारे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फोटोन की एनर्जी से इक्वेट कर दिया। ये कौन सा लॉ है आपका फिजिक्स का? आप पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में? मेरे को ठीक से बताओ क्या है ये। डी ब्रॉगली आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में? पहली बार ही नहीं देखा आपने ये सब? एमसी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम किसका? एमसी किसका मोमेंटम है? एमसी किसका मोमेंटम है? Photon. फोटोन का मास होता है? फोटोन का मास होता है? अगर मास ही नहीं होता तो मोमेंटम एमसी कैसे लिख दोगे आप फोटोन का? अगर फोटोन का मास ही नहीं है तो हाउ कैन यू से एमसी इज मोमेंटम ऑफ फोटोन? और वैसे भी आइंस्टाइन मास मास इक्वेशन क्या थे? रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला क्या था? M is equal to m naught by under root of 1 minus v square by c. C square. अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी c के इक्वल, अगर आप mc को मोमेंटम कह रहे हो तो c इसमें स्पीड है। फिर किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की स्पीड c के इक्वल होगी तो मास कितना हो जाएगा? Infinite. तो फिर mc मोमेंटम कैसे हो सकता है किसी चीज का? किसी भी चीज का मोमेंटम mc कैसे हो सकता है? c से तो मूव ही वही करता है जिसका मास 0 होता है। mc मोमेंटम कैसे हो गया? आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था ना, mc किसी चीज का मोमेंटम कैसे हो सकता है? बिकॉज केमिस्ट्री में आपने इसके बाद क्या दिया? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, mc को मोमेंटम लिख दिया। और किसी चीज का मोमेंटम mc होता ही नहीं, बिकॉज अगर वेलोसिटी c के इक्वल होगी तो मास इनफाइनाइट हो जाना, अगर मास 0 है तो मोमेंटम 0 हो जाना पार्टिकल का। क्या करूं मैं इसका? ये क्या है?
E/mc² का क्या मतलब होता है? मेरे को इसका फिजिकली मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है? mass can be converted into energy. क्या? Energy can be converted into mass. Energy and mass are interconverted. फोटोन का तो मास ही नहीं है, तो उसकी एनर्जी mc² कैसे होगी? फोटोन तो आपने पढ़ा है मासलेस पार्टिकल है, तो उसकी एनर्जी mc² कैसे होगी? जिस बॉडी का मास ही नहीं है तो मैं उसका एनर्जी कैसे लिख दूं mc²? आप फोटोन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर डुअल नेचर से बात हमने लिखी, मतलब कि वो बात क्या सर डुअल नेचर से मतलब हमने ये बात लिखी थी। डुअल नेचर मतलब? डुअल नेचर तो प्रूफ करना है अभी। डुअल नेचर से क्या करूं मैं? मेरे को बताओ, E/mc² तो आइंस्टाइन ने कहा था उन पार्टिकल्स के लिए कि अगर कभी भी मास m एनर्जी में चेंज होगा तो इक्विवेलेंट एनर्जी mc² प्रोड्यूस होगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फॉर्मूला। अपने का E/mc²। m इसमें कौन सा मास है? m इसमें कौन सा मास है? कि उसने जनरल दिया था किसी भी पार्टिकल के लिए, फोटोन की बात नहीं कर रहा था वो। बिकॉज हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब यूज हुआ उसमें भी यही फॉर्मूला यूज हुआ कि रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट से ज्यादा है, जो डिफरेंस इन मास है वो एनर्जी में चला गया। तो इसमें m किसका मास है? किसी भी पार्टिकल का जिसका रेस्ट मास m0 है। तो आइंस्टाइन का यही फॉर्मूला था कि अगर किसी चीज का रेस्ट मास m0 है, बट अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मास बदल जाएगा m0/1 - v²/c²√। तो ये उसकी एनर्जी होगी। अगर मतलब मास एनर्जी में चेंज हो रहा है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, इसका मोमेंटम कितना होगा? mv। अगेन m इज ठीक है यहां तक। E² किसके इक्वल आएगा? p²। इक्वेशन ठीक है? अभी तक देखो, अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो। E² - p²/c² कितना हो जाएगा?
आइंस्टाइन ने ये एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। आइंस्टाइन ने E = mc² को ऐसे नहीं यूज करना होता। अब मेरे को बताओ फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास फोटोन फॉर रेस्ट मास m0 इज 0। m0 0 है तो E किसके इक्वल आ गया? इसी के। और एक एनर्जी का फॉर्मूला फोटोन की hc/λ, इन दोनों को इक्वेट किया था। और उसने कहा यही फॉर्मूला उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिनका मास है। तो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ये है कि अगर रेस्ट मास m0 है, मोमेंटम p है, तो एनर्जी p² c² प्लस m0² c4। इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी फॉर्मूला कहीं भी लगा देते हो, mc इज मोमेंटम। समझ में आए? ये वैसे आपके सिलेबस की चीज नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, फिर आप इस पर रट्टा मारोगे, इसलिए मैंने प्रूफ कर दिया कि आया कहाँ से। अच्छा चलो, अगर मैंने जनरल उसने कहा बिकॉज नेचर लव सिमेट्री, तो हर चीज का मोमेंटम लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होगा। उसकी रिसर्च के थोड़े साल के बाद डेविसन एंड जर्मर ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर होता है। दे फाउंड वेवलेंथ, अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माने और एक बार वेवलेंथ निकाली अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव माने, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी माना, वेव भी माना, दोनों केसेस में लैम्डा सेम आ गया। तो जैसे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर है, तो बाकी चीजों का भी डुअल होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मैंने अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया, हाउ विल द डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। इफ इट स्टार्ट्स मूविंग विद 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाउ विल द डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज? सर मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो जाएंगे। क्या सर मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो जाएंगे। ये m कौन सा मास है? रेस्ट मास है या मूविंग मास है? रेस्ट मास तो m0 होता है, ये मूविंग पार्टिकल का मास है। तो स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ता है या कम हो जाता है? सर बढ़ता है। तो मास भी बढ़ गया और स्पीड भी बढ़ गई, तो वेवलेंथ बिकम्स हाफ और लेस देन हाफ। लेस देन हाफ। लेस देन हाफ। अच्छा, डी ब्रॉगली वेव्स को आप केमिस्ट्री में मैटर वेव्स भी कहते थे। डी ब्रॉगली वेव्स की स्पीड होती क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने कहा बिकॉज डी ब्रॉगली वेव की हर चीज के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, मैटर वेव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैटर वेव्स की स्पीड कितनी है, डी ब्रॉगली वेव्स की स्पीड कितनी होती है? अगर एक डी ब्रॉगली वेव ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? डी ब्रॉगली वेव की स्पीड क्या होगी? कोई बता सकता है? अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, कुछ डेटा दे दूं और डी ब्रॉगली वेव्स की स्पीड दूं, c is velocity of light, less than c, greater than c, depends on the particle. less than c. Less than c कैसे? Why less than c? क्योंकि मास है तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं स्पीड हो सकती।
तो पार्टिकल ना, मैं तो डी ब्रॉगली वेव की पूछ रहा हूँ, मैं तो डी ब्रॉगली वेव की स्पीड पूछ रहा हूँ, मैं पार्टिकल की तो पूछ ही नहीं रहा। आइंस्टाइन का फॉर्मूला तो पार्टिकल्स के लिए था, जो m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, दैट्स फॉर पार्टिकल्स। मैं पूछ रहा हूँ डी ब्रॉगली वेव्स की स्पीड क्या होगी, डी ब्रॉगली वेव्स की स्पीड क्या होगी। लेस देन c होनी चाहिए, नहीं तो m इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा? 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। वो तो पार्टिकल का फॉर्मूला है यार, वो तो एक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m नॉट है उसका फॉर्मूला है। मैं पार्टिकल की तो बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज आप खुद एक आपका भी डुअल कैरेक्टर है ना, पार्टिकल भी हो वेव भी हो। तो मैं कह रहा हूँ आपके साथ जो डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है मीडियम, बीट एनी पार्टिकल, आप वो आपके मोबाइल फोन है, सबकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो मैं पूछ रहा हूँ उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मतलब वो एक वेव है, तो उसकी स्पीड कितनी है ये बता दो बस मेरे को। इस डी ब्रॉगली वेव की स्पीड क्या लिखूं मैं? आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए? लाइट के इक्वल होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी से कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, ठीक है, ओके। किसी भी वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू लैम्डा। डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी कितनी आ रही है, लाइट से ज्यादा लाइट से कम? लाइट से ज्यादा। अभी तो आप कहे थे कम। डी ब्रॉगली वेव की यही वेलोसिटी होती है सी स्क्वायर बाय वी, और ये लाइट से ज्यादा होती है। आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी नहीं अच्छे से, मेरे को लगता है आपको मॉडल ऑफ एन एटम भी ठीक से नहीं आते होंगे। क्या आते हैं मॉडल ऑफ एन एटम? रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा था? रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और रदरफोर्ड ने मॉडल में क्या पोस्टुलेट दिए थे याद है? प्लम पुडिंग याद है सबको? प्लम पुडिंग मॉडल, हाँ जी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद है? यस। अल्फा पार्टिकल्स आर मेड टू स्ट्राइक द थिन गोल्ड फॉइल जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर सिंटिलेशन प्रोड्यूस डेविएशंस वगैरह निकाली। बट मेरे को ये बताओ अल्फा स्कैटरिंग से ये कैसे पता चला कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कैसे कंक्लूड कर दिया कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत है? सर उसके अंदर मास सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड था उसके अरे बाद, लेकिन उसको पहले गलती मिली तब बताया ना उसने, उसकी गलती क्या है? प्लम पुडिंग में क्या गलती है? फिर ये प्लम पुडिंग के हिसाब से मास हर जगह होना चाहिए था। प्लम पुडिंग के हिसाब से मास हर जगह होना चाहिए था, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो हर जगह होने से क्या प्रॉब्लम है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या प्रॉब्लम थी? स्कैटरिंग के रिजल्ट उसके साथ कोरिलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर बहुत कम स्पेस से डेविएशन प्रोड्यूस हुआ था, मतलब सीधे ही निकल गए थे काफी। क्योंकि सर बिकॉज सर जो डेविएशन बहुत कम स्पेस से प्रोड्यूस हुआ था। फिर मोस्ट ऑफ द रेज सीधी चले गए थे, तो इससे पता लगा कि आधी स्पेस खाली है।
सर जैसे अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो अल्फा पार्टिकल उनके साथ टकरा कर बाहर निकल जाते, डेविएट नहीं करते, क्योंकि वो जैसे बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स हैं। इससे एक चीज प्रूव हो रही है कि आप रटते बहुत अच्छा हो। गोल्ड ये पहले ये सोचा था कि अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होगा, वो गोल्ड पर को आपको ये पता है जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको पता नहीं था वो हीलियम न्यूक्लियस है। ये पता है कि ये भी नहीं पता? वो तो आपको पता है, रदरफोर्ड को थोड़ी पता था। अल्फा पार्टिकल तो बाद में डिस्कवर हुआ है, बाद में पता चला कि वो हीलियम न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड को तो सिर्फ ये पता था कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ना तो उसका मास पता था, ना ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज कितना है। अब बताओ मेरे को कैसे रदरफोर्ड को पता चला कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत है? आपकी सारी थ्योरी इस असम्पशन पे चल रही है कि अल्फा पार्टिकल डेविएट तभी हो सकता है बिकॉज वो हैवी पार्टिकल है, तो उसको न्यूक्लियस से डेविएट कर सकता है, बट उसको तो मास ही नहीं पता था यार। क्या फंडे लगा रहे हो आप? अल्फा पार्टिकल बाद में पता चला था हीलियम न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड को नहीं पता था, गीगर को नहीं पता था, मार्सडन को नहीं पता था। मेरे को उसके अलावा बताओ, मास के अलावा कोई रीजन अगर आपको आता है तो। कि अगर आपको सिर्फ ये पता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या प्रॉब्लम है? प्लम पुडिंग मॉडल जिसमें उसने कहा कि सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट लाइक प्लम्स इन अ पुडिंग, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेके? अगर मेरे को मास इसका नहीं पता। हाँ जी, हर जगह से रिपल्शन होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स हो रही थी। कुछ भी। अगर मेरे को बताओ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? इस एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो रिपल्शन होगी कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए था स्कैटरिंग के लिए, सारे अनडेविएटेड जाने चाहिए थे। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, चाहे आप रदरफोर्ड का मॉडल ले लो, चाहे आप प्लम पुडिंग ले लो, बाहर इसलिए डेविएशन कभी नहीं होती। हम एटम के अंदर डेविएशन शो करते हैं बिकॉज एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इट वाज फाउंड कि स्कैटर हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था, तो स्मॉल एंगल लार्ज एंगल स्कैटरिंग होनी क्या कहां से थी अगर मास कुछ भी हो? आपको ये चीजें पूछनी चाहिए ना जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। बिकॉज आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वो आपको कहाँ फंसाते हैं। उन्होंने कहा बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में सोडियम एटम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली, आपकी नॉलेज के हिसाब से नहीं। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में सोडियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? कौन बता सकता? आप चलो अपने हिसाब से बताओ क्या होने चाहिए। एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 11, 11, 12. 11, 11, 12। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। अब बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली अच्छा, आपने कहा रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हो। मैं आपसे बोलूं बोहर्स न्यूक्लियस, उसके अंदर सोडियम का बोहर न्यूक्लियस,
ऑल्दो उसने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दिया था। मैं लिथियम पॉजिटिव डाई पॉजिटिव का भी पूछ सकता था, मैं हीलियम पॉजिटिव का भी पूछ सकता हूँ। हीलियम का ले लो, चलो हीलियम पॉजिटिव, उसके न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं अब। उसके न्यूक्लियस में क्या क्या है? हीलियम न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड मॉडल या बोहर मॉडल, उसके अंदर क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है? सिर्फ प्रोटॉन्स। 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 23 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। से अब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्यों? बाहर ले लिए। क्या? बोहर ने इलेक्ट्रॉन तो बाहर भी लिए थे। तो अंदर भी ले लियो, उसमें क्या? आप बीटा डीके पता क्या होता है? बीटा डीके, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में से निकलते हैं उनको बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। बीटा डीके इज emission of electron from the nucleus. तो पहले बीटा डीके जब डिस्कवर हुआ तो उसको एक्सप्लेन करना आसान था। हम नॉर्मल यही कहते हैं कि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी निकलेंगे, एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उनको हम बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। और ऐसे ही चली थ्योरी, बिकॉज इवेंट इंपॉर्टेंट होता है। रदरफोर्ड ने मॉडल जो दिया दैट वाज 1905, बोहर ने 1911 में, और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ 1930s में जाके। तब तक तो किसी को ये पता ही नहीं था कि न्यूट्रॉन होता भी है। रदरफोर्ड मॉडल आने के 25 साल तक तो न्यूट्रॉन का कोई नामो निशान नहीं था, बिकॉज न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस ही नहीं पता थी किसी को, न्यूट्रॉन होता भी है। चैडविक ने डिस्कवर किया तो पता चला ना कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा। तो तब तक तो न्यूट्रॉन का, अगर आपने 1930 से पहले की किसी भी थ्योरी में लिख दिया न्यूट्रॉन, तो मतलब आपकी थ्योरी गलत है, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं अभी। तो आपने ये जो बोला कि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, आपने पढ़ा ना कि उसका मास ज्यादा है, वो हीलियम न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। बट इन सबको नहीं पता था। और ये सारे साइंटिस्ट वैसे थे कहाँ के? रदरफोर्ड, बोहर्स, जानते थे दोनों एक दूसरे को, रदरफोर्ड और बोहर। बोहर उसकी लैब में ही काम करता था, रदरफोर्ड का असिस्टेंट था। नील्स बोहर वाज असिस्टेंट, दोनों मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में थे। बट बोहर उसको असिस्ट करता था रदरफोर्ड को। बाद में उसने रदरफोर्ड के मॉडल को ही गलत प्रूव किया और रदरफोर्ड की हेल्प से ही किया। रदरफोर्ड ने खुद उसको आइडिया दिया कि ऐसे भी सोच के देखते हैं। तो बेसिकली साइंटिस्ट ऐसे काम नहीं करते कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। बट पहले जो थ्योरी थी दैट वाज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आजकल जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। बीटा डीके तब होती है जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो। तो विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल से प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है। बट इस ये पहले, अब बीटा डीके की ये थ्योरी आई प्लस सम एनर्जी, इसमें आपको देख के कुछ गलती नहीं लग रही? इसको देख के कुछ गलती समझ नहीं आ रही? इसमें क्या गलत हो गया इस रिलेशन में? अगर आपने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है तो आपको इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये तो पक्का ही गलत है। इसमें क्या गलत है? अगर मैं कहूँ न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस सम एनर्जी, इसमें क्या गलत है?
चार्ज कंजर्व है, मास कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, गलत क्या है? किसी को देख के इसमें गलती नजर आ रही है? न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। कैसे नहीं है? देख के पता नहीं चल रहा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है इसमें? किस किस को देख के समझ में आ रहा है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है? तीनों की स्पिन प्लस माइनस हाफ हो सकती है, कभी भी बैलेंस हो सकती है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो टोटल स्पिन कितनी होगी? 1। दोनों नेगेटिव हुए तो -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो 0, और इधर प्लस माइनस हाफ है। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब लिखो डी ब्रॉगलीज थ्योरी। केमिस्ट्री की एक बुक आती है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस। उसको कभी कभी उठा लिया करो, पढ़ लिया करो, या कोई ढंग के नोट्स ही पढ़ लो। अगर आप सोचते हो कि मॉडर्न की बुक पढ़ के एसपी जौहर की और आपका काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। एसपी जौहर एक बहुत इंटेलिजेंट केमिस्ट्री का टीचर है, पर उसने बुक में नहीं लिखा सब कुछ। इसलिए मैं ऑथर की बुराई नहीं कर रहा जिसने वो बुक लिखी है, बिकॉज मैं खुद उसका स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को पता है उससे अच्छा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर शायद पूरे नॉर्थ जोन में कोई नहीं होगा। बट उसने बुक में अगर नहीं मेंशन किया तो आप एडिशनल बुक पढ़ सकते हो। लिखो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस can write some phenomena involving light. Some phenomena involving light can be explained only if we assume light to be particle. For example, photoelectric effect or Compton scattering, etc. Photoelectric effect or Compton scattering, etc. Whereas phenomena like polarization, phenomena like polarization or diffraction can be explained if we assume light to be a wave. This implies that light possesses dual character. This implies that light possesses dual character. De Broglie stated that
as nature loves symmetry. Therefore, if light possess dual character, everything else in the universe should also possess dual character. Everything else in the universe possess dual character. And the de Broglie wavelength for a particle having momentum p, is given by lambda is equals to h by p. Is given by lambda is equal to h by p. For particle having Is given by lambda is equals to h by p. Can write इसके आगे लिखो proof. According to Einstein formula, for any particle having mass m and rest mass m naught, energy and momentum are given by फिर नोट कर लो. थोड़े से नीचे पे
इसके आगे लिख लो यहाँ तक लिखने के बाद। Thus for any other particle, thus for any other particle having mass m, ब्रैकेट में लिख लो relativistic. For any other particle having mass m, m is relativistic mass, and speed v, de Broglie wavelength is given by, for any other particle having mass m and speed v, de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by mv. इसके नीचे नोट में लिखो, in daily life, momentum of the particles is very large. In daily life, momentum of the particles is very large. Therefore, the wavelength, de Broglie wavelength is negligibly small. De Broglie wavelength is negligibly small, and wave character is negligible. And wave character is negligible. Second point लिखो, as m denotes relativistic mass, therefore, when speed increases, mass will also increase. Therefore, momentum will also increase. एक बार रिपीट कर दो, मास विल आल्सो इंक्रीज के बाद क्या बोलेगा? Therefore, momentum will also increase. So next time करते हैं इसके आगे de Broglie wavelength निकालेंगे different situations में for charge particle accelerated through potential difference v, or de Broglie wavelength of say gas molecules having temperature at temperature T. थोड़ा सा internal energy का concept आना चाहिए उसके लिए, because temperature के साथ relation करना है तो you have to know हम किस gas की बात कर रहे हैं, वो monatomic है, diatomic है, triatomic है, because degrees of freedom और internal energy उसी पे डिपेंड करेंगे और उसी पे ही फिर मोमेंटम डिपेंडेंट हो जाएगा. वो थोड़ी बहुत 11th की फिजिक्स आनी चाहिए, अदरवाइज चल जाएगा. सर टाइमिंग क्या होगा ऑफलाइन? ऑफलाइन का टाइमिंग्स 2:30 to 3:30, या फिर मैं अगर सब आओगे तो फिर इसी टाइम. बिकॉज आप में से तो कोई डाउट पूछने भी नहीं आता, यहाँ तो किसी को आते नहीं, कोई डाउट है ही नहीं किसी का, बिकॉज 11th वाले भी डाउट्स पूछने आ जाते हैं अगर मैं ऑफिस होता हूँ टाइम लेके. आपके बैच में तो कोई नहीं आता डाउट्स पूछने भी.
मतलब बहुत खुश हैं तसल्ली से ऑनलाइन क्लास लगा के। सो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप बट आप डाउट्स पूछने तो आ सकते हो ना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। कि ऑनलाइन क्लास लगाते जाओ, कुछ नहीं समझ आया या आपने खुद से कोई न्यूमेरिकल किया, ऐसा तो है नहीं, हमने ऑलमोस्ट हमारी फिजिक्स खत्म होने वाली है, तो आपको आज तक कोई डाउट ही नहीं आया होगा इसमें। बिकॉज कुछ चीजें होती है जो 1 to 1 बेटर एक्सप्लेन हो सकती हैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की जगह। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लगानी है, इसको कंटिन्यू करना है, आप कोई भी बुक कर रहे हो, मेरे को इससे भी मतलब नहीं है। आपके पास नोट्स हो सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, कोई डिफरेंट बुक हो सकती है। तो जब आप उसको करते हो, जब आपको लगे कि आपके डाउट्स हो गए अराउंड 45 minutes to 1 hour के, आप मेरे से टाइम लेके ऑफिस में आके वो समझ के जा सकते हो। बिकॉज हमारा पर्पस एक होना चाहिए कि हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है किसी भी तरह। और अब तो बिकॉज बोर्ड ने भी एमसीक्यूज कर दिए हैं, तो एमसीक्यूज भी अच्छे होने ही चाहिए सबके। लेवल अभी तक उन्होंने बताया नहीं, मे भी थोड़े दिन में आ जाएगा, बट मेरे को टेंटेटिव नीट वाला लेवल लग रहा है शायद वही होगा। बट अब अपने डाउट्स क्लेरिफाई करने के लिए तो आ सकते हो, उसके लिए आपको इंडिविजुअली आना है, उसमें कोई चक्कर भी नहीं है कि कोरोना है आप अकेले ही आओगे तो अकेले आके अपने डाउट्स पूछ जाओ, या 2 फ्रेंड्स हैं तो 2 लोग आ सकते हैं। बट अपने डाउट्स को क्लेरिफाई करो, इट्स हाई टाइम। बिकॉज अभी जो हमारा प्लान रहेगा, मैं तो अभी ये खत्म करके 12th क्लास को 11th की रिवीजन शुरू कर दूंगा। बट आप तब तक 12th के तो अपने डाउट्स क्लेरिफाई कर दो, जो 12th में चीजें नहीं समझ आई।